Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule: Class 5th, Subject Mathematics, Lesson 10, Money, Part 1. Good morning, student. Myself, Rajkumar Bhattacharya, and I am your maths teacher. Today, we are discuss about our new chapter, chapter 10, money. So, this chapter has 4 exercises, and the exercises have 4 to 5 question each. So, we will discuss 2 of them today and 2 of them in our next video. So, let's continue with our exercise 1. Student, देखिए, your first topic from exercise 1 is कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसे। सो आपको पता होगा, आपने बहुत जगह सुना भी होगा कि रुपीज होते हैं, पैसे होते हैं। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट रुपी इनटू पैसे? दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक। सो लेट्स सपोज यू हैव 2 रुपीज एंड यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी पैसे यू हैव। सो टू कन्वर्ट रुपीज टू पैसे you have to multiply it by 100 because 1 rupees has 100 पैसे। बिकॉज आपका जो 1 रुपी होता है वो 100 पैसे के इक्वल होता है, इसलिए हम लोग रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। सो 2 रुपीज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 200 पैसे। Okay, so this is your first topic. Let's take another example. You have 1.5 rupees and you have to find out how many paise you have. So just multiply 1.5 by 100. Answer is 150 paise. So you have 150 paise. That's how you can convert rupees into paise. Your next topic is how can you convert paise into rupees. So student, your second topic from exercise 1 is conversion of paise into rupees. So how can you convert paise into rupees? For converting paise into rupees, you have to divide it by 100. So let's take an example. 250 paise. Then how many rupees you have? So just divide 250 by 100. So 250 divided by 100 is equal to 2.5 rupee. So convert paise into rupee, you have to divide it by 100, and to convert paise into rupee, you have to multiply it by 100. Let's discuss our questions from exercise 1. So your first question from exercise 1 is convert into rupees. So you have to convert paise into rupees, and as you know, to convert paise into rupees you have to divide it by 100. So there is 50, so 50 divided by 100 is equal to 0.50 rupees. This is your answer for question number 1, part number A. Number 6 is 51350 paise. You have 51350 paise and you have to convert it into rupees. How can you convert it? By dividing it by 100. So 51350 divided by 100 equal to 513.50 rupees. ओके, आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आपको किसी नंबर में 100 से डिवाइड करना है, सो उसके लिए आप कैसे करके डिवाइड कर सकते हैं। सो देखिए, अगर आपका नंबर 51350 यही नंबर है मान लीजिए, और आपको 100 से डिवाइड करना है, सो आप, बिकॉज इसमें 2 जीरोस हैं, सो आप राइट हैंड से 2 वैल्यू काउंट कीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड देन उसमें पॉइंट यूज कर लीजिए। सो 513.50 ये आपका आंसर हो जाएगा।
मींस अगर आपको 100 से डिवाइड किसी नंबर में करना है तो राइट हैंड से 2 प्लेसेस के बाद आप पॉइंट यूज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, योर सेकंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू पैसे। यू हैव टू कन्वर्ट रुपीस इनटू पैसे। सो एज यू नोज, टू कन्वर्ट rupee into paise you have to multiply it by 100. So 1.5 is there as a part of this question. So 1.5 multiplied by 100 to convert it into paise. 1.50 multiplied by 100, then after multiplying this will be answer. Again देखिए, मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा बिकॉज आपका पॉइंट जो है वो 2 प्लेसेस के बाद है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका डिजिट आता है उसमें 2 प्लेस के बाद आपको पॉइंट को यूज करना होगा। बिकॉज मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 15000 आया, तो आप 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, सो आपका आंसर हो जाएगा 150.00 पैसे। ओके, सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर डी है, हम इसको भी करते हैं। सो 17.50 multiply by 100, it will be 1750.00 paise. Okay, so to convert paise into rupee you have to perform divide. To convert rupee into paise you have to perform multiply. क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ आपका। इसके साथ एक्सरसाइज 1 जो है वो आपकी कंप्लीट होती है। आपके क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 आपका होमवर्क होगा। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज 2 की बात करते हैं। सो स्टूडेंट, इन एक्सरसाइज सेकंड you have the questions related to addition and subtraction of money. So आपके एक्सरसाइज सेकंड में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन डेसिमल नंबर के एक बार और समझाना चाहूंगा। तो देखिए, यू हैव टू ऐड 2.45 एंड 3.46। ओके, सो 2.45 एंड 3.46। देखिए, ऑलवेज रिमेंबर आपका पॉइंट के नीचे पॉइंट यूज होना चाहिए। आपकी डिजिट्स थोड़ी एक्सटेंड हो सकती हैं, मींस आपकी थोड़ी बड़ी डिजिट्स हो सकती हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर आपको ऑलवेज पॉइंट के नीचे पॉइंट यूज करना होगा। सो देखिए, 5 + 6 11, 1 कैरी, देन 4 + 4 8, 8 + 1 9, देन 2 + 3 5। सो आपका आंसर इतना आ जाएगा। सेम इन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट यूज करना है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 2 से। देखिए स्टूडेंट, योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2 इज एडिशन। सो देखिए स्टूडेंट, योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2 इज एड। सो यू हैव टू परफॉर्म एडिशन बिटवीन them. Your first part is ₹157.50 and ₹29.50. You have to add them. So 157.50, 29.50 add. So 0 + 0 0, 5 + 5 10, 1 carry, then 9 + 7 16, 16 + 1 17, 5 + 2 7, 7 and 1 carry 8, then 1. So after adding those 187.00 will be your answer in rupees. Okay, आपको ऐसे एडिशन परफॉर्म करना है। So part number B, part number C will be your homework. So student, your second question from exercise second is subtract ₹89.50 from ₹12400। आपको 12400 में से इस रुपी को सब्ट्रैक्ट करना है। सो देखिए, अगेन पॉइंट के नीचे पॉइंट यूज करके हम लोग इसको लिखेंगे। देन बिकॉज हमको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, मैंने सब्ट्रैक्ट का साइन इसी जगह यूज कर लिया है। सो देखिए, 0 में से 0, देन 0, बट
आपका यहाँ पे 0 है बट यहाँ पे 5 है, तो यू हैव टू टेक अ कैरी फ्रॉम देयर। सो कैरी लेने के बाद ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 3, देन 10 minus 5 पॉइंट रिमेन सेम, देन 3 में से आप 9 को माइनस नहीं कर सकते, देन यू हैव टू टेक अ कैरी एंड इट विल बी 1, देन 13 minus 9 is equal to 4, then 11 take a carry, 11 minus 8 is equal to 3. So after subtracting 89.50 from 124, your answer will be 34.50 rupee. ओके, इस टाइप से आपको सेकंड क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करना है। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका सम से रिलेटेड है, आपको डायरेक्ट उसमें सम परफॉर्म करना है, सो दैट पार्ट इज आल्सो इन योर होमवर्क। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू ₹197.50 टू गेट ₹250.00, मींस आप इस नंबर में क्या ऐड करें, आप इस नंबर में कितने और रुपए ऐड करें, कितने और रुपए आप जोड़ें कि आप कितने रुपीस हो जाए। सो देखिए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू पहले इसका एक समझा देता हूं, फिर आपको क्वेश्चन हम लोग कराते हैं। तो देखिए, आपको 10 रुपीस चाहिए, आपके फादर ने आपको 5 रुपीस दिए, हाउ मेनी मोर रुपीस यू नीडेड, आपको और कितने रुपीस चाहिए होंगे? यस, योर आंसर इज राइट, 5 रुपीस। हाउ कैन यू फाइंड आउट? आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 10 में से आपने 5 को सब्ट्रैक्ट किया, तब जाकर के आपका 5 जो है वो आंसर आया। सो सेम क्वेश्चन, आपको इस रुपये में कितने रुपए और दिए जाएं, कितने रुपीस और दिए जाएं कि आपका 250 रुपीस हो जाए। सो उस कंडीशन में आपको 250 में से इस डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस 197.50। सो 0 minus 0 0, देन 0 में से आप 5 को नहीं कर 0 में से आप 5 को माइनस नहीं कर सकते, इस वजह से आपको कैरी लेना होगा। सो 4 10 एंड देन 10 में से कैरी लेंगे तो यहाँ 9 रिमेन रहेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, देन 10 minus 5 is equal to 5, 9 minus 7 is equal to 2। देखिए, फिर देन अगेन 4 एंड 9 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सो उस कंडीशन में आपको 1 कैरी लेना होगा, then 1 remains here and 14 minus 9 is equal to 5, 1 minus 1 is equal to 0, so means you have to add 52.50 rupees more to get 250 rupees. Okay, and as you know, we have already completed our exercise 2 from chapter 10, and your homework from exercise 2 is, from first question you have to do second and third part, from second question you also have to do second and third part, and question number 3. This is your homework. So please घर पर अच्छी तरीके से मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। Thank you so much. My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time to complete your homework. Dear students, in your homework, complete mathematics work as per given instruction in video class. Okay, my dear students, take care of yourself, stay at home, stay safe, God bless you, bye bye, see you in the next class.